Welcome children. Let we discuss the plotting of the graphs in the chapter Introduction to Graph. We will talk about the plotting of linear graph. In the linear graph, we mark the coordinate of the information given and join them by a line. If we get a straight line, we call it a linear graph. Now, children, when we plot any graph, we know that we take two axes. One is our x and one is our y. One information is represented on the x-axis and second information is represented on the y-axis. And so now whenever a table is given for plotting the graph, so there are two things we have to understand first. The first is independent variable and second is dependent variable. These two things we have to understand, independent and dependent variable, because this will help in plotting the graph. Now what is independent and what is dependent variable, let me understand by the help of one example. Suppose we have taken the cost of one notebook. One notebook cost is 10 rupees. Cost of two notebook is 20 rupees, 3 is 30, 4 is 40. Now here what we are watching, that we are taking the number of notebooks 1, 2, 3, 4 and correspondingly we are getting the cost of the notebook. The cost of the notebook depends upon the number of the notebooks. How many notebooks we are taking, accordingly we will get the cost of them. Okay. So in this case, our independent variable is number of notebook and dependent variable is cost. Understand this way, independent variable means which doesn't depend on anyone or anything for its value. Like number of notebooks, you can take randomly any number of notebooks. Okay, but the cost will come according to the number of notebook taken, means cost depends upon the number which you are taking. So we have to understand whenever a question is given for plotting the graph, which is independent, which is dependent variable. So independent which doesn't depend on anyone, dependent variable whose value depend upon the independent variable. So here the independent variable is we can show it, independent variable in short is the number of notebook and dependent variable is cost of the notebook. Now in the graph on the x-axis we locate the independent variable and on the y-axis we locate the dependent variable. Okay, now let me begin with the questions now. Now look at the first question. Draw the graph for the following table of values with suitable scales on the axis. Now we have to plot the graph for this. We are being given the number of apples and cost. So as we have discussed here, the number of apples will act as the independent variable and the cost will act as the dependent variable. So we will locate the number of apples on the x-axis and the cost on the y-axis. And how we are watching the cost? For one apple it is 5, 2 apple 10, 3 15, 4 25, 25. Now let me begin with the plotting of graph. Now here we have taken a graph paper on which the x and y axis is already marked. Now suppose we are locating the points here. Now we have to take a suitable scale first of all. Now for the scale, you see the number of apples are given as 1, 2, 3, 4, 5. So on the x-axis our scale will be 1 block equals to 1 apple. So we will take on x-axis 1 block equals to 1 apple, yani the number. And cost is given as 5, 10, 15, 20, 25. So on y-axis we can take 1 block or 1 unit. In 1 unit you have small 10 lines equals to rupees 5. So this is our scale. So children, we have to be very careful while choosing the scale. We have to take a proper scale so that a graph can be plotted. So on the x-axis we have taken 1 block equal to 1 apple. On the y-axis we have taken 1 block equals to rupees 5. Now let me label the graph. This will be 0, this will be 1, 2,
3, 4, 5, and here we have taken the cost as 5, 10, 15, 20, 25. Now we will label it. Here we will write, this is number of apples on the x-axis, and this is cost. Now when the number of apple was 1, the cost was 5 rupees. So this you will mark here 1 and 5 and put a circle here. When the number of apple was 2, the cost was 10. So 2 here from x-axis you will take 2 and move up, and from 10 on y-axis you will move horizontally. So both will come here. This is 2 comma 10. Then for 3 apple the cost was 15 rupees. So this is, we have to be very careful, mark it very light. 3 comma 15. Then 4 comma 20 we have to mark, and then 5 comma 25. So we have marked all the things given in the question, that for 1 apple the cost was 5, for 2 it was 10, for 3 it was 15, 4 it was 25, it was 25. Now we are going to join it. So let me take a line. We have joined this. Now see, we have joined all the points which are given in the question. So our independent variable was number of apples, dependent was cost, we have joined, and we are getting a straight line. So this is the graph for this equation, and as we are getting a straight line after joining all the points, we will call it a linear graph. We will call it a linear graph. It will be a linear graph. So what is a linear graph? If on joining the points you get an unbroken line, so we call it a linear graph. So this way the graph will be plotted. The scale can be written here also. Like suppose we have written here, so y-axis we have written equals to rupees 5. This way we can write the scale also. Now moving on to the next question. Now the question is distance traveled by a car. Now it is given a distance traveled by a car. We are being given time in hours, 6 am, 7 am, 8 am, 9 am, and the distance is given 40, 80, 120 and 160. So 4 time slots are given, and 4 distances are given. You know that here the independent variable will be time and dependent variable will be your distance, because as the time will increase, the distance will also change. Now let me go for plotting the graph here. Now first of all, we see that the time interval is given as 6, 7, 8, 9, 10. It is 6, 7, 8, 9. 4 time slots are there. So let me take here 6. Suppose we have taken here this first block. This we have written as 6 am. This 7 am. This is 8 am. And this is 9 am. This is our time axis. Then this is time. Now let me take for the distance, it is 40, 80, 120, 160. Now there is a gap of 40, 40. So let me take a scale here. Here we will take one block on the y-axis equals to 40 kilometers. This is the scale we are taking, that one block equals to 40 kilometers. So this is 40, 80, 120, 160, 200. So this is our distance. So this is the scale we have taken on the y-axis, that on the y-axis we have taken one block equals to 40 kilometers. And on the x-axis our scale is one block equals to 1 hour. Means from the 6 to 7 these 10 lines are showing 1 hour time. So अगर if you will take the middle point, यानी कि 5th line को अगर आप ले लेंगे तो वो आपका शो करेगा 6:30.
और 5 का भी हाफ कर देंगे तो इट विल शो 6:15। तो ये आपको समझना है कि एक ब्लॉक में 10 लाइन्स होती है, तो 10 लाइन्स को हमने 1 आवर लिया है, तो यानी कि 5 लाइन्स का मतलब हाफ एन आवर हो गया। सिमिलरली वाई एक्सिस में हमने एक ब्लॉक को 40 लिया है और उसमें 10 लाइन्स होती है, तो इसका मतलब कि एक लाइन जो है उसमें पतली वाली या थिन वाली वो 4 को रिप्रेजेंट करती है, बिकॉज 4 इंटू 10 40 होता है और एक ब्लॉक में 10 लाइन्स होती हैं, तो 4 इंटू 40। आइए अब रीडिंग्स को देखते हैं। एट 6 o'clock वो 40 पे था, 7 पे वो 80 पे था, 8 पे वो 120 पे था, 9 पे वो 160 पे था। तो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। 6 AM ही वॉज एट 40, ही हो गया 6 AM। एट 7 AM ही वॉज एट 80, तो ये 7 से हम ऊपर को गए और 80 से ऐसे आए तो ये 80 हो गया। फिर 8 AM पे हम 8 o'clock से ऊपर को जाएंगे और यहाँ पे 120 से हॉरिजॉन्टल आएंगे, दोनों लाइनें जहाँ पे मिलेंगी, यानी कि यहाँ पे मिल रही ये हो गया, और 9 पे वो था 160, तो ये हमारा रीडिंग हो गया। अब इसको हम जोड़ देते हैं एक लाइन से। तो चिल्ड्रन दिस इज द ग्राफ प्लॉटेड। ना हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार ट्रेवल ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 से 8। 7:30 से 8 बजे तक कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हम ग्राफ की मदद से इसको देख सकते हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया 7 और 8 के बीच में 10 लाइनें हैं, तो बिल्कुल मिडल वाली लाइन आपकी 15 हाफ एन आवर को शो करेगी। तो लेट वी टेक 1 2 3 4 5, यहाँ पे कहीं पे आपकी मिडल लाइन आ जाएगी। तो ये मिडल लाइन कहीं पे यहीं पर आ रही, तो यहाँ से हम एक पर्टिकुलर ड्रॉप करेंगे। ये हमने सी 7:30 पे हमने लिया, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर ले गए। ये ग्राफ की लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल ले जाएंगे। ये देखिए, तो अब आप देख रहे हैं कि 7:30 यानी कि 7 और 8 के बिल्कुल मिडल से हमने एक लाइन ली, इसको वर्टिकली ले गए, जहाँ पे ग्राफ लाइन को इंटरसेक्ट किया यहाँ से हम इसको हॉरिजॉन्टली ले गए वाई एक्सिस पे। तो आप देख रहे हैं 80 और 120 के बिल्कुल सेंटर में ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि जो 5th लाइन है वहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो 80 से 120 के बीच में 40 का गैप है और ये बिल्कुल हाफ में आ रही है, तो 40 का हाफ यानी 20, तो 80 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर यानी कि 100 किलोमीटर। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा पहला पार्ट है, अभी हमने देखा 7:30 से 8 बजे तक। हाँ चलिए, तो 7:30 बजे हम देख रहे हैं कि जो कार है वो 100 किलोमीटर पे है, और 8 बजे का जो टाइम है उसमें हमने ऑलरेडी देखा है 120 किलोमीटर पे थी। तो 7:30 बजे 100 पे और 8 बजे 120 पे, तो हम देख सकते हैं कि 7:30 से 8 के बीच में 120 माइनस 100 यानी कि 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया है। तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा कि ड्यूरिंग द टाइम बिटवीन 7:30 टू 8 जो कार है उसने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब आते हैं नेक्स्ट है, व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट स्टार्ट। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि 7:30 बजे जो कार थी उसका डिस्टेंस 100 किलोमीटर था, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं एट 7:30 AM। तो दिस वे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ वी कैन आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट एंड we can deduce many of the results from that. Now moving on to the next question. अगला क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर अ ईयर। डिपॉजिट 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 का है और इंटरेस्ट हमारा है 80, 160, 240, 320 और 400। अब यहाँ पे आपको समझना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका डिपॉजिट है, ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो डिपेंड करेगा कि आपने कितना पैसा जमा किया है। अगर आप ज़्यादा पैसा जमा करेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, कम पैसा जमा करेंगे तो कम इंटरेस्ट मिलेगा। मीन्स सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड अपॉन द डिपॉजिट। तो डिपॉजिट हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हम एक्स एक्सिस पे शो करेंगे, और सिंपल इंटरेस्ट हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हमने वाई एक्सिस पे शो करना है। और डिपॉजिट हमारा 1000, 2000, 3000, 4000 ऐसे चेंज हो रहा है, तो हम एक्स एक्सिस पे जो अपना स्केल लेंगे, एक्स एक्सिस पे जो हम स्केल लेंगे, हम 1 ब्लॉक इक्वल्स टू लेंगे 1000 रुपीज़, एंड ऑन द वाई एक्सिस सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया गया 80, 160, 240, 320, 400। तो ऑन वाई एक्सिस लेट वी टेक अ स्केल ऑफ
₹80, यानी कि एक ब्लॉक को हम ₹80 लेके चलते हैं। तो आइए ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये हमारा एक्स और वाई एक्सिस है। यहाँ पे हमने अमाउंट ले लिया है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हमने सिंपल इंटरेस्ट ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम प्लॉट कर लेते हैं, ये 1000 है, ये आपका 2000 है, ये आपका 3000 है, ये आपका 4000 है, देन यूर 5000 आ गया। On the y-axis we have taken a scale of 80, so 80, this is 160, 240, 320, 400. So let me see the question. तो 80, 160, 240, 320 एंड 400, तो हमने ले लिया है। ओके, नाउ वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ। सबसे पहले हमने देखा कि जब 1000 डिपॉजिट था तो इंटरेस्ट था ₹80, तो हम इसको यहाँ पे ले लेंगे, ये हमारी ग्राफ की लाइन आ गई। फिर 2000 जब अमाउंट था, हमारा इंटरेस्ट था 160, तो ये यहाँ आ जाएगा। 3000 के केस में हमारा इंटरेस्ट था 240, तो यहाँ आ जाएगा। 4000 के केस में इंटरेस्ट था 320, तो यहाँ आ जाएगा। और 5000 के केस में इंटरेस्ट था ₹400, तो यहाँ आ जाएगा। Now we will join them by a line. ये हमने ग्राफ बना लिया है। दिस इज द ग्राफ प्लॉटेड। नाउ लेट वी डिस्कस द क्वेश्चंस नाउ। पहला क्वेश्चन, डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन? क्या ये ग्राफ ओरिजिन से पास करता है? पहला, तो अगर हम देखेंगे कि जो हमारा ग्राफ था, वी कैन सी दैट येस इट इज़ पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। ये देखिए ओरिजिन से पास हो रहा है, तो पहले वाले का आंसर हमारा हो जाएगा येस। दूसरा क्वेश्चन, यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 2500 फॉर ए ईयर। अब ग्राफ की मदद से हमें बताना है कि अगर हमारा डिपॉजिट अमाउंट 2500 का है तो इंटरेस्ट कितना होगा। अब देखिए ये है 2000 और ये है 3000, तो इसके बिल्कुल बीचों बीच में हमें देखना पड़ेगा कि हमारा 2500 बिल्कुल बीचों बीच में आता है। तो फिफ्थ लाइन, एक दो, ये हमारी फिफ्थ लाइन होगी 2500 की। यहाँ से हम एक वर्टिकल लाइन अप करेंगे ऐसे करके, ये हमने 2500 से ऊपर को लाइन लेंगे, और जहाँ पर ये लाइन आई इसको हम हॉरिजॉन्टली, ये ग्राफ लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट करी, तो वहाँ से हॉरिजॉन्टल एक लाइन हम ऐसे ले लेंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली है। थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। वी हैव टू वेरी पर्टिकुलर ऑन प्लॉटिंग द थिंग्स ऑन द ग्राफ। चलिए ये आ गया। तो आप देख रहे हैं कि जब हमने 2500 से लाइन ऊपर को ले गए और जहाँ पे इंटरसेक्ट करी वहाँ से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ले गए, तो ये 160 और 240 के बिल्कुल सेंटर पे आ रही है। तो 160 और 240 के बीच में 80 का गैप है, 80 का हाफ यानी 40 हो जाएगा। तो 160 में 40 ऐड करेंगे तो आपका जो इंटरेस्ट आएगा 2500 पे वो आ जाएगा ₹200। कितना आ जाएगा? ₹200। तो वी हैव गॉट द इंटरेस्ट फॉर 2500 का जो डिपॉजिट अमाउंट था उस पर हमारा इंटरेस्ट कितना हो गया? 200 का हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ 280 पर ईयर हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिटेड। अब हमें ग्राफ की मदद से देखना है कि अगर हमारा इंटरेस्ट 280 हो, तो हम देख रहे हैं अगर इंटरेस्ट 280 देखना है तो 240 और 320 के बीच में 80 का गैप आता है, 80 का हाफ 40 होता है। तो यानी कि जो 280 वो 240 और 320 के बिल्कुल बीचों बीच में, यानी कि आप यहाँ से 5 लाइन काउंट करिए, 1 2 3 4 5। तो ये फिफ्थ लाइन आपने काउंट कर ली मान लीजिए सेंटर में, और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लीजिए कि ये ग्राफ लाइन को कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये आप लोग कॉपी में स्केल की मदद से करिए, और जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करिए वहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। You have to be very careful in plotting this। ये आया, और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया।
ये परपेंडिकुलर 3000 और 4000 के बिल्कुल सेंटर पे आ रहा है। देखिए हमने 320 से 280 से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ले गए, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, वहाँ से एक वर्टिकल लाइन नीचे डाउन की, तो 3000 और 4000 के बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। और 3000 और 4000 के जो सेंटर में वैल्यू होगी वो होगी 3500। तो हम कह सकते हैं कि फॉर ₹3500 जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो होगा ₹280। तो दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यूज बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। And yes, we are watching that the graph is coming a straight line, so again we will call it a linear graph. Now come moving on to the next question. Now यहाँ क्वेश्चन है हमारा साइड ऑफ द स्क्वायर एंड पेरीमीटर। तो हमें पता है साइड ऑफ द स्क्वायर अगर दिया है तो पेरीमीटर 4 इंटू साइड होता है, तो हमें साइड्स दी गई हैं 2, 3, 3.5, 5 एंड 6, और हमारा पेरीमीटर है 8, 12, 14, 20, 24। तो हमें देखना है एक्स एक्सिस पे हमारा स्केल क्या होगा, वाई एक्सिस पे क्या होगा, और हम देख रहे हैं कि हमारा जो ग्राफ है क्या वो लीनियर है या नहीं है, ये भी हमें देखना है। तो आइए इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा साइड और डिपेंडेंट हो जाएगा पेरीमीटर। यहाँ पे हम एक्स एक्सिस का जो स्केल है, एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं 1 ब्लॉक इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। एक ब्लॉक को हम 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। वाई एक्सिस पे जो हमारा स्केल है इसको हम ले लेते हैं, इट इज़ 8, 12, इसको हम 4 का ले लेते हैं, 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। आइए प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम वाई एक्सिस पे आते हैं, एक्स एक्सिस पे आते हैं। यहाँ पे हमने साइड ली है, यहाँ हमने पेरीमीटर लिया वाई एक्सिस में, तो ये जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और यहाँ पे हमने स्केल लिया था 4 का, तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 30। तो ये हमने साइड और पेरीमीटर ले लिया है। अब हम देखते हैं हमारी रीडिंग्स क्या हैं। 2 के लिए 8, 3 के लिए 12। ना साइड है 2 तो पेरीमीटर हो जाएगा 8, ऑब्वियस है, साइड इंटू 4 इंटू साइड होता है। और 3 के लिए है 12, तो हमने 3 के लिए 12 ले लिया। फिर हमारी नेक्स्ट रीडिंग थी 3.5, यानी बिल्कुल सेंटर में, ये 14 आ रहा था, तो बिल्कुल हम सेंटर में जाएंगे। नियर अबाउट यहाँ आएगा। इसको आप ऐसे ले सकते हैं कि यहाँ से 3.5 से एक वर्टिकल लाइन ऊपर ले लीजिए, यहाँ पे हम आ रहे हैं। थ्री 3.5 एंड 4 हमने कर लिया। देन नेक्स्ट रीडिंग है हमारी 5 एंड 20, 6 एंड 24। तो 5 एंड 20, 5 हमारा ये है, 20 हमारा ये है, देन 6 एंड 24। So these are the readings we have marked here. Now हम इसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं। तो वी हैव ऑब्टेन्ड अवर ग्राफ। तो ये हमारा ग्राफ है साइड और पेरीमीटर के बीच में जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। इज इट अ लीनियर ग्राफ? तो सिंपली हमें देखना है कि ये लीनियर ग्राफ है कि नहीं। जैसा कि हमने डिस्कस किया, लीनियर ग्राफ ये होता है कि इफ़ वी जॉइन द पॉइंट एंड वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन, इट्स अ लीनियर ग्राफ। सो वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन, तो येस वी विल कॉल इट अ लीनियर ग्राफ। तो ये हमारा एक लीनियर ग्राफ है। तो हम देख रहे हैं कि साइड और पेरीमीटर जो होता है स्क्वायर का, उसके बीच में जो रिलेशन होता है उसका ग्राफ कैसे बनता है, एक लीनियर ग्राफ बनता है। Now moving on to the last question of the exercise। अब यहाँ पे हमें साइड और
एरिया दिया गया। हमें पता है साइड और स्क्वायर के बीच में, साइड ऑफ स्क्वायर और एरिया में रिलेशन ये होता है कि एरिया इज द स्क्वायर ऑफ साइड, यानी साइड इंटू साइड एरिया। तो यहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है साइड, डिपेंडेंट वेरिएबल है एरिया। तो एक्स एक्सिस पे हम साइड को शो करेंगे, वाई एक्सिस पे हम एरिया को शो करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारी साइड हो जाएगी, वाई एक्सिस पे हमारा एरिया हो जाएगा। तो साइड हमारी हम ले लेते हैं, स्केल हम लेंगे एक्स एक्सिस पे 1 1 का। तो 1 2 3 4 5 and 6. Now let we see what scale can be taken on the y axis. तो हमारे 36 है, तो हम ऐसा करते हैं कि y एक्सिस में 5 का स्केल ले लेते हैं, यानी कि 1 ब्लॉक इक्वल टू 5। तो 5 10 15 20 25 30 35 and 40. Now in first case our reading is when the side is 2, side is 3, 2 3 4 5 6, ये हमारी साइड्स हैं। सो जब साइड हमारी 2 होगी तो हमें पता है 8 स्क्वायर हमारा एरिया 4 हो जाएगा। तो देखिए 0 से लेके 5 के बीच में हमारी 10 लाइन्स हैं, तो यानी 10 लाइन्स रिप्रेजेंटिंग 5, तो यानी कि 2 लाइन्स रिप्रेजेंटिंग 1। तो यानी 4 को देखने के लिए हम क्या करेंगे, 8 लाइन मूव करेंगे, यानी कि 0 से हम 8 लाइन ऊपर जाएंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। तो ये हमारा लगभग यहाँ पे आएगा, ये हमने मार्क कर दिया है। तो व्हेन द साइड इज 2 एरिया इज 4। द नेक्स्ट साइड वॉज 3 तो एरिया वॉज 9। तो 5 से ऊपर हम अगेन 9 का मतलब है 4 पॉइंट्स और, तो और एक पॉइंट इज डिनोटेड बाय 2 लाइन, तो यानी कि हम 8 लाइन और ऊपर जाएंगे तो हमें 9 मिलेगा। सो इट विल कम हेयर। ये हमने मार्क कर दिया। देन 4 का स्क्वायर होता है 16, तो हमारा एरिया 16 हो जाएगा। तो यानी 15 के ऊपर हम फिर 2 लाइन जाएंगे, क्योंकि हमारी 2 लाइनें एक को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो ये हमारा 16 हो गया। देन 5 के केस में हमारा एरिया हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ आ जाएगा, ये आ गया। देन 6 के केस में हमारा एरिया जाएगा 6 का स्क्वायर 36, तो हम 35 से 2 लाइन और ऊपर जाएंगे तो ये हमारा 36 हो जाएगा। तो ये हमने पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया। अब हमें इसको ज्वाइन करना है। हम खुद ही देख सकते हैं कि जो सारे पॉइंट्स हैं स्ट्रेट लाइन की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन। तो हम इसको अगर रफ हैंड से जोड़ते हैं या स्केल की मदद से जोड़ते हैं, तो अगर हम इसको स्केल की मदद से जोड़ते हैं तो ये पॉइंट हमारा ऐसे आया। देन नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, ये हमारा ऐसे आया। देन इसको जोड़िए, ये हमारा ऐसे आया। देन इसको जोड़िए, ये हमारा ऐसा आया। नाउ वी हैव जॉइंड ऑल द पॉइंट्स टू ईच अदर एंड वी आर गेटिंग दैट दिस इज नॉट कमिंग अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि साइड और एरिया के बीच में जो रिलेशन है स्क्वायर का, उसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, यानी कि ये एक लीनियर ग्राफ नहीं है। तो हम सिंपली कहेंगे नॉट अ लीनियर ग्राफ। यही क्वेश्चन में पूछा भी गया था कि क्या ये लीनियर ग्राफ है, तो हमारा आंसर है नो, बिकॉज सारे पॉइंट्स जोड़ने के बाद हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिले। तो चिल्ड्रन दिस वे हम किसी भी क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल को आइडेंटिफाई करते हैं। इंडिपेंडेंट को एक्स एक्सिस में, डिपेंडेंट को वाई एक्सिस में डिनोट करते हैं, फिर इनके पॉइंट्स को मार्क करके ग्राफ को प्लॉट करते हैं। अगर वो स्ट्रेट लाइन आता है तो लीनियर है, नहीं तो नहीं है। और ग्राफ की मदद से हम बहुत सारी रीडिंग्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ ग्राफ्स। थैंक यू।